شماریات نے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 1.81% بڑھ کر 17.37% پر جا پہنچی۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 18.62% ریکارڈ کی گئی۔ حالیہ ہفتہ 30 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے اعداد و شمار 4% ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا نیا ریکارڈ، عوام بے یار و مددگار، مہنگائی کا نیا سونامی تیار، حکومت، اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کا چپ کا روزہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 175 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے مہنگا 204 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 1 روپے 50 روپے مہنگا ہو کر 238 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 60 پیسے مہنگا ہو کر 50 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ سعودی ریال 20 پیسے مہنگا ہو کر 47 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی بریکیں فیل ہو گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ حکومت، اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے کا ہو گیا۔ گاڑیوں کی بڑھتی قیمتوں نے خریداروں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ آٹو موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بھی آئے روز کے اضافے کو ٹھکرا دیا۔ استعمال شدہ گاڑیاں بھی شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ گاڑیوں کی بڑھتی قیمتوں نے خریداروں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ آٹو موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بھی آئے روز کے اضافے کو ٹھکرا دیا۔ استعمال شدہ گاڑیاں بھی شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ ملتان کے تاجروں اور ایف بی آر میں ٹھن گئی۔ ترجمان آر ٹی او جنوبی پنجاب مختار حسین تھیم کہتے ہیں کہ 1000 اسکوائر فٹ کی دکانوں پر ایف بی آر سے ان کا سسٹم انٹر لنک ہوگا۔ احتجاج کر کے بلیک میل مت کیا جائے۔ ملتان کے تاجروں اور ایف بی آر میں ٹھن گئی۔ ترجمان آر ٹی او جنوبی پنجاب مختار حسین تھیم کہتے ہیں 1000 اسکوائر فٹ کی دکانوں پر ایف بی آر سے ان کا سسٹم انٹر لنک ہوگا۔ ملتان کے تاجر اور ایف بی آر آمنے سامنے آ گئے۔ تاجروں کی ہڑتال کی دھمکی، ایف بی آر نے مزید شکنجہ کس لیا۔ آر ٹی او نے تاجروں کے مطالبات مسترد کر دیے۔ ترجمان آر ٹی او جنوبی پنجاب مختار حسین تھیم کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا 1000 اسکوائر فٹ کی دکانوں پر ایف بی آر سے ان کا سسٹم انٹر لنک ہوگا۔ ہم نے پہلے نوٹسز وغیرہ دیے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، جو بڑے بڑے پلازے ہیں، جو مختلف قسم کے برانڈ شاپ ہیں، ہم انہیں چاہ رہے ہیں کہ اپنے ٹیکس نیٹ میں لائیں اور ان کی جو اوریجنل جو ان کی سپلائی سیل وغیرہ ہیں وہ ہمارے نیٹ میں آ سکیں۔ مختار حسین تھیم کا کہنا تھا ٹیکس چوری کا اختیار کسی کو نہیں دیا جائے گا، جبکہ بڑے کاروباری مراکز کا تمام ڈیٹا ایف بی آر سسٹم پر مانیٹر کیا جائے گا۔ وہ ہمارے اس جو لیٹر کی کمپلینس نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی ان کو 10 لاکھ روپے کے حساب سے ان کو جرمانہ بھی ہو رہا ہے جو کہ اپیلیبل ہے، اور اگر وہ کمپلینس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایف بی آر سے انٹیگریٹ کرتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں جرمانوں سے بھی بچ جائیں گے۔ ترجمان آر ٹی او جنوبی پنجاب مختار حسین کا مزید کہنا تھا تاجر احتجاج کی بجائے ٹیکس ادا کریں۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے سردیوں میں گیس کے شدید بحران سے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ گھریلو صارفین کو صبح، دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت گیس ملے گی۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے سردیوں میں گیس کے شدید بحران سے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں گھریلو صارفین کو صبح، دوپہر اور رات کے کھانے کے وقت گیس ملے گی۔ گیس بحران ابھی آئے گا، وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے خبردار کر دیا۔ کہا سردیوں میں گھریلو صارفین کو صرف ناشتہ، دوپہر اور رات کے کھانے کے اوقات میں چند گھنٹے گیس دستیاب ہوگی۔ ہفتے میں 3 دن گیس لوڈ شیڈنگ کی خبریں درست نہیں۔ حماد اظہر کا سینیٹ میں کہنا تھا کہ گیس بحران کا تعلق ایل این جی سے نہیں، روس سے گیس پائپ لائن کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنے کی نوید بھی سنا دی۔ کہا کوشش کر رہے ہیں گھریلو اور صنعتی دونوں سیکٹرز کو گیس فراہمی ہو۔ سینیٹ میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کے توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر نے سندھ کے 70% گیس پیدا کرنے کے دعوے کو بھی رد کر دیا۔ کہا سندھ 38% گیس پیدا کرتا ہے، بلوچستان 40%، کے پی 12% اور پنجاب 9% گیس پیدا کرتا ہے۔ روہی کی خبر پر ایکشن، ملتان انتظامیہ نے سڑک پر لگے غیر قانونی کیٹ آئیز ہٹا دیے۔ شہریوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
रूही की खबर पर जिले इंतजामिया का बड़ा एक्शन। सड़कों पर लगे कैटाइस से मुल्तानियों को निजात मिल गई। शहरियों का कहना था कि कैटाइस से गाड़ियों को काफी नुकसान हो रहा था। इस मसले की वजह से बहुत सारी मरीजों को भी दुश्वारी का सामना था और मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ियों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना था। कोई मरीज गाड़ी में जाता था उसको भी तकलीफ से गुजरना पड़ता था। ये मैं समझता हूँ कि जिले इंतजामिया का बहुत अच्छा फैसला है। स्टील की बनी ये खतरनाक कैटाइस 1935 में बरतानिया में इजाद हुई। मकसद सड़क किनारे नस्ब करके खतरे की निशानदाही करना था, मगर मुल्तान में इन्हें बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल किया जा रहा था। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान ने गैर कानूनी कैटाइस हटाने के लिए कमिश्नर मुल्तान को खत भी लिखा। शहरियों का कहना था कि इमरजेंसी में गुजरने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एम्बुलेंसेज जब यहाँ से गुजरती थी तो उससे मरीज को भी बहुत दुश्वारियां पैदा होती थी। तो ये मुल्तान इंतजामिया ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा फैसला किया कि यहाँ से हटा दिया गया। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड से कैटाइस को हटाना जिले इंतजामिया का अच्छा फैसला है। जिले इंतजामिया की जानिब से रोड पर मौजूद गैर कानूनी कैटाइस को रोड से हटा दिया जा चुका है। दूसरी जानब शहरियों का ये कहना था कि जिले इंतजामिया की जानिब से ये अच्छा फैसला है जिससे शहरियों को सफर करने में आसानी होगी। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचे की, ना पैसे होंगे, ना ही मुल्तान बिहारी रोड बनेगा। मंजूरी के बावजूद 2 साल से बिहारी पर रोड पर काम शुरू नहीं हो सका है। हादसात मामूल बन गए। सड़क खूनी रोड के नाम से मशहूर हो गई। ना नौमन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी, ना पैसे होंगे, ना मुल्तान बिहारी रोड बनेगा। मुल्तान से बिहारी रोड के मिड पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये रोड की सूरत हाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं है। तमाम का तमाम रोड ये टूटा हुआ है और ये रोड मुल्तान से लेकर बिहाड़ी तक ऐसा ही है। मजीद लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्तान का बिहाड़ी रोड खूनी रोड बन गया। सिंगल होने और ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस हादसात बढ़ने लगे। मोटरवे से लिंक होने के बायस हैवी ट्रैफिक भी मुंतकिल हो गई। मुल्तान से बिहाड़ी रोड के मिड पॉइंट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी रोड की जो सूरत हाल है वो कोई मिसाली हमें नजर नहीं आ रही। तमाम का तमाम रोड ऐसे पीसेस में बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कभी सवारी की रफ्तार तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा होता है। आखिर इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से लोग क्या कहते हैं, मुतलका महकमे क्या कहते हैं, आइए आप। शहरी का कहना था कि रोड के शोल्डर टूटे होने के बायस मोटरसाइकिल सवार हादसात का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। बड़े यहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये 15-16 साल से सारा ये रोड टूटा है। ये हम यहाँ इस रोड से बहुत तंग हैं, हम कभी गुजर ही नहीं सकते। हम पहले तो गुजर लेते थे, अब तो गुजरने का नाम ही नहीं है। शहरियों ने सड़क को डबल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2 साल से बजट में रकम मुख्तस हो रही है मगर काम नहीं हो रहा। ये डबल होना चाहिए सर जी। और दूसरी बात, ये तो रोजाना किसी की लात टूट रही है, किसी की बांह टूट रही है। तकरीबन रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी, ये साइड में जो खड्डे हैं ना, उनसे बचने के लिए मोटरसाइकिल वाला इधर होने लगता है, वो उसका किसी न किसी चीज में लग के काम न करने वाली बात है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान वजीर आला पंजाब से यही इल्तमास है कि इस बिहाड़ी रोड को डबल किया जाए और इस संगीन किस्म के हादसात से बचा जाए। एक्सियन हाईवे हुमायूं मसरूर का कहना था कि ये रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एशियन बैंक के तावन से मुकम्मल होगा। कुछ मामलात में डेडलॉक है, तजावजात का हल निकलने के साथ ही सड़क का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। 2 साल से मुल्तान बिहाड़ी रोड बनाने के दावे तो बहुत किए गए मगर अभी तक उन वादों के ऊपर अमली काम शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से आए रोज हादसात होते हैं और लोग कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। कबीरवाला के इलाके सराय सिद्धू में करोड़ों रुपए लागत से तामीर बिल्डिंग इंतजामिया के अदम तवज्जो का शिकार। साबिक एमपीए सरदार अकबर हयात हराज की काविशों से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ऑपरेशनल ना हो सका। अकबर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स राय सिद्धू को इंतजामिया ने फाल करने के बजाय ताले लगा दिए हैं। मुनासिब निगरानी न होने से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का बैरूनी गेट और जंगले टूट फूट चुके। शहरियों का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां न होने की वजह से नौजवान नस्ल बेरानवी का शिकार है। कबीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की 3 रोजा दौरे पर मुल्तान आमद हुई। तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए धांधली करना चाहती है। जमात इस्लामी किसी सूरत पीटीएम का हिस्सा नहीं बनेगी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 3 रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब का दिल है। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के साथ वादे पूरे नहीं किए। मुल्तान दाखिल होने पर एक रिक्शा ड्राइवर ने भत्ताखोरी और रिश्वत की शिकायत कर दी। लेकिन इन 3 सालों में जनूबी पंजाब के अवाम के साथ, सराई की अवाम के साथ, बहावलपुर के अवाम के साथ जो वादे किए थे, एक वादा भी उन्होंने नहीं पूरा किया, नहीं निभाया। और जैसा ही मैं शहर में दाखिल हुआ तो मुझे एक आम गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाले ने शिकायत की कि मुल्तान में बदतखोरी बहुत आम है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना था कि 20 किलो आटा 1550 का, जबकि चीनी 150 रुपए किलो हो चुकी है। तहरीक इंसाफ का वक्त खत्म हो चुका। हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया कि मुल्तान में 150 रुपया फी किलो चीनी फरोख्त हो रहे हैं। आखिर इसका अंजाम क्या होगा? अब तो PTI की हुकूमत जितने वादे करे, जितने ऐलानात करे, न इनके साथ सलाहियत है और न अब इनके साथ वक़्त बाकी रह गया। इनके साथ करने का जो वक़्त था वो खत्म हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था कि मुल्क में संगीन सूरत हाल की 3 सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। पेंडोरा बॉक्स में वजीरों, अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट और जनरलों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से पेंडोरा बॉक्स पर JIT बनाने की अपील करते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान शहर के डेवलपमेंट के लिए जापान हुकूमत ने 73 अरब रुपए का तोहफा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने शाहरुख आलम में जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। 27 कनाल से ज्यादा रकबे पर मुहित 4 मंजिला अस्पताल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 7 अरब 87 करोड़ 7 लाख रुपए लागत आएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अस्पताल की तामीर से 1190 अफराद को रोजगार मिलेगा। 60 लाख का मंसूबा है। मेरे भाइयों, जब ये अस्पताल मुकम्मल होगा, यहां 1190 लोगों को मुलाजमत मिलेगी। 1190 लोगों को जब मुकम्मल होगा, उसमें नर्सें भी होंगी, उसमें हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर भी होंगे, उसमें वार्ड बॉयज भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे। तो इंशाअल्लाह 1190 खानदानों के घर के चिराग जलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अस्पताल जो है ये 4 मंजिला होगा, क्योंकि शहर में जमीन हासिल करना आसान नहीं है। करोड़ों की जमीन है ये, और नहीं, जमीन शामिल है, और ये हम इसको ऊपर ले गए हैं। 4 मंजिला, एक ग्राउंड फ्लोर होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसकी बुनियाद मैं इस तरह डिजाइन करवा रहा हूं, हम तो कल मर के चले जाएंगे, जहान फानी है। आज अभी मैं अपने बहनोई का फातिहा पढ़ रहा था, कल हम एक दूसरे का पढ़ रहे होंगे। मुल्तान कस्टम हुकाम ने तारीख रकम कर दी। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। कस्टम कलेक्ट्रेट इमरान अहमद चौधरी ने लोही को बताया कि 1300 मिलियन का स्मगलिंग शुदा सामान भी पकड़ा है। मौसम मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान कस्टम हुकाम कामयाबियों की जानिब गामजन। पहली बार 1300 मिलियन रुपए का स्मगलिंग शुदा सामान पकड़ लिया। कस्टमर कलेक्टर इमरान अहमद चौधरी का कहना था कि रवां साल 1.25 अरब के केस किए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, मंशियात और दीगर स्मगल शुदा सामान बरामद किया। इन्होंने कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ कोई इदारा अकेला काम नहीं कर सकता। 3-4 माह की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जब से मैंने चार्ज लिया, यहाँ पर तकरीबन कोई 1300 मिलियन के हमने यहाँ पर सीजर किए हैं, जो कि पिछले साल इसी पीरियड से कोई 28% ज़्यादा है। इसके अलावा ऑक्शंस की हैं, जो पकड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें 15 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में जमा हुआ है। कस्टम कलेक्टर इमरान अहमद चौधरी का कहना था कि नई भर्तियों 7 नई चेक पोस्टों और DG खान और रहीम यार खान में दफातर के लिए दरखास्त की है। पकड़े गए सामान की नीलामी करके पैसा कौमी खजाने में जमा करवाया जा रहा है। रिकॉर्ड सीजर है पिछले 3-4 माह का। 1300 मिलियन सीजर कभी भी इतने पीरियड में कभी नहीं हुआ। कल हमने 3 ट्रक रेंजर्स की कोऑर्डिनेशन के साथ पकड़े हैं, जिसमें 90 मिलियन का सामान था। सिगरेट्स, बीटल नट्स, छालिया, कपड़ा और इस तरह के डिफरेंट आइटम्स, जो अभी हमने रात को फिर उसमें FIR भी काटी है, 2 बंदों को अरेस्ट भी किया है। कस्टम हुक्काम हेदी होम्स और लावारिस बच्चों की भी मदद कर रहे हैं। SOS विलेज के बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की तजवीज भी दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान।
तरक्याती मनसूबों के फंड्स लैप्स करने से अवामी फलाह के मनसूबे ताखीर का शिकार, लागत में भी 15% इजाफा। पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को फंड्स के दोबारा इजरा की मंजूरी दे दी। पायदार तरक्की के अहदाफ पर प्रोग्राम के लिए विफाक ने पंजाब को 35 अरब रुपए का फंड दिया था, जो हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के हल्कों में तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होना था। ताहम पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स अरकान कौमी असम्बली के हल्कों में खर्च होने के बजाय बैंक में पड़े रहे। ज़राए का कहना है कि फंड्स खर्च न होने से मालियाती पॉलिसी के मुताबिक फंड्स लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से अवामी फलाह के मनसूबे ताखीर का शिकार रहे, जबकि मनसूबों की लागत में भी 15% इजाफा हुआ। शहरी ओलिया के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद जारी है। नॉर्दर्न बाईपास की कुशादगी का अमल मुकम्मल, सालों से बंद नॉर्दर्न बाईपास आबशार को भी चला दिया गया है। नॉर्दर्न बाईपास की कुशादगी के बाद सालों से बंद आबशार को भी चला दिया गया, जबकि नॉर्दर्न बाईपास चौक पर नई आबशार भी फाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने नॉर्दर्न बाईपास चौक का दौरा किया और चौक को यादगार बनाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मेट्रो बस के पिलर्स पर मुल्तान आर्ट का रंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 3 चौकों की तज़ीनो राइश का काम जारी है। मुल्तान को जनूबी पंजाब में सियाहत का मरकज बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मियां माली का एहसन इकदाम, खवातीन को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रखने के लिए खेलों का सामान फ्राहम। खवातीन 3 से 5 बजे तक गर्ल्स हाई स्कूल में सिविल स्टेशन में वॉक और वर्जिश कर सकेंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। कमिश्नर मियां वाली खुरम शहजाद ने गर्ल्स हाई स्कूल सिविल स्टेशन को खवातीन की वर्जिश के लिए मुख्तस कर दिया। यहाँ आने वाली खवातीन को खेलों का सामान भी फराहम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तहसील लेवल पर भी तमाम स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा, ये देखें, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का जो एक विजन है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उसको हमने ये ट्रांसलेट किया है। हमारा जो है टारगेट वो ये है कि खवातीन की तरफ से अगर पॉजिटिव हमें वो फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक से मुराद ये है कि वो यहाँ पे आती हैं, तो हम साइमल्टेनियसली जो है पूरे ज़िले के इसी तरह स्कूल्स जो हैं वो दरवाजे खोल देंगे। मैं समझता हूं कि हमारे डीसी साहब जो हैं वो हर मैदान में मनफद किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि खवातीन के लिए एक ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाए कि वो घरों से बाहर निकलें। पीटीआई खवातीन की जिले सदर अमारा न्यासी का कहना था कि घरों में मैसूर पर्दादार खवातीन जहां आकर लुत्फ अंदोज हो सकेंगी। स्कूल प्रिंसिपल ने खवातीन को खुश आमदीद कहा और ताउन की यकीन दहानी करवाई। नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता कि फीमेल शिकायत करती हैं और इंशाल्लाह, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है कि फीमेल्स आएंगी यहाँ, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। करती हूँ इस प्रोग्राम को और इस हवाले से ये है कि अच्छी बात है कि जब मदर्स इस सिलसिले में आएंगी हमारे इदारे में, तो जो टीचर पेरेंट मीटिंग होती है जिसमें वो नहीं आ सकती, तो हो सकता है कि उनके अंदर ये भी रेगुलरिटी आ जाए। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद के इस इकदाम को खूब सराहा। डीसी साहब का ये बहुत ही खुश आइंद कदम है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि मियां वाली में रहते हुए हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फीमेल को प्रोवाइड कर रही है। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए स्कूल में लेडी पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। एफआईए की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई, शारजा से डिपोर्ट होने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुसाफिरों में शफकतुल्लाह, आतिश हुसैन और रमजान शामिल हैं। तीनों मुसाफिरों का डिपार्चर रिकॉर्ड नहीं मिल सका। मजीद तहकीकात के लिए मुसाफिरों को एफआईए सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में जिला इंतजामिया का चीनी माफिया के गिर्द घिरा तंग, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की गल्ला मंडी में कार्रवाई, रेट लिस्ट और बैनर अवेजा न करने पर 5 डीलर्स की दुकानें सील कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर जिला इंतजामिया का सरकारी चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए एक क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में गल्ला मंडी में रेट लिस्ट और बैनर अवेजा न करने वाले चीनी डीलर्स की 5 दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने 5 दुकानें सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस मौके पर इस सिटी ख्वाजा उमैर महमूद का कहना था कि गल्ला मंडी के डीलर सरकारी चीनी के 88 रुपये किलो के रेट अवेजा करने के पाबंद हैं, ताकि आप मार्केट में रिटेलर्स 90 रुपये में फरोख्त कर सकें। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। सी एजुकेशन मुल्तान शमशेर खान इन एक्शन, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अयूब सिद्दीकी और हेडमास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल शौकत अली को मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल में कुरान पाक जैसी तालीम ना देने पर सी एजुकेशन शमशेर खान मुल्तान ने एक्शन ले लिया।
اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اور ہیڈ ماسٹر کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. ایسے میں معطل ہونے والے دونوں افسران کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی, جبکہ مراسلے میں یہ واضح کہا گیا کہ نہلی اور بد انتظامی کے الزامات کے تحت فوری طور پر معطل اور پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت بھی کارروائی کا حکم دیا گیا. ملتان میں ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان سے تاجروں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. وفد نے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کو تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا ہے. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے یقین دلایا کہ تاجروں کی تجاویز پر عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈی سی ملتان عامر کریم خان کا چلڈرن اسپتال کا دورہ, ادویات کے اسٹاک, طبی سہولیات اور دیگر امور کا جائزہ لیا. مریض بچوں کے لواحقین سے بھی سہولیات بارے استفسار کیا. چلڈرن اسپتال کے دورے کے موقع پر کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کے دوروں سے اہم مسائل کی جانچ اور ان کو حل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم کا کہنا ہے کہ عثمان گلزار کی قیادت میں پنجاب حکومت صحت عامہ کی سہولیات یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز خرچ کر رہی ہے. سیکرٹری پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بہاڑی کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال میں صفائی, ادویات کی فراہمی, ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی حاضری سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا. انہوں نے ناقص کارکردگی پر ایم ایس ڈاکٹر ڈاؤ مسعود اکبر کو عہدے سے ہٹا دیا. ملتان میں انٹرنیشنل چلڈرن ڈے کے موقع پر سول سوسائٹی فورم کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ دیکھیے سہیرہ طارق کی. انٹرنیشنل چلڈرن ڈے ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے. سول سوسائٹی فورم سے شاہد محمود انصاری کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل چلڈرن ڈے کی 7 روزہ تقریبات 16 سے 22 نومبر تک منعقد کی جائیں گی. اس دوران تعلیمی اداروں میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رنگا رنگ پروگرام منعقد کیے جائیں گے. ملتان کے بچوں کو ان کا جو دن ہے وہ اس کو تقریبات کو ہم کرنے چلے ہیں, اور ایک ہفتہ روزہ تقریبات جو کہ ہماری 16 نومبر سے لے کر 22 نومبر تک ملتان میں منعقد کی جائیں گی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی فوکل پرسن آصفہ سلیم کا کہنا تھا کہ بچوں سے وابستہ مسائل, تشدد, ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے آگاہی, جبکہ بچوں سے جبری مشقت, کم عمری کی شادی کے نقصانات بارے آواز بلند کی جائے گی. ہماری کوشش ہے کہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کریں اور بچوں کو ہر طرح سے انٹرٹین کریں اور ان کو دکھائیں اور بتائیں کہ وہ معاشرے کے ایک مفید شہری بن سکتے ہیں. 7 روزہ تقریبات کے دوران مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ بارے آگاہی دی جائے گی. قانون ساز اداروں کو بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے متحرک کیا جائے گا. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. کوٹ مٹھن میں صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کے 124واں 3 روزہ عرس جاری ہے. دوسرے روز محفل سماع کا انعقاد کیا گیا. سجادہ نشین خواجہ معین الدین قریجہ اور بھارت سے سجادہ نشین اجمیر شریف سید محمد بلال چشتی کا کہنا تھا کہ صوفیہ کے پیغام کو عام کر کے نفرتوں اور محبتوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کوٹ مٹھن میں سلطان العاشقین اور سرائکی ادب کے سب سے بڑے شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کے 124ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں. دوسرے روز بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. محفل سماع میں معروف قوال نذیر اجاز فریدی نے سماع باندھ دیا. سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین قریجہ کا کہنا تھا کہ صوفیاء کرام کی زندگی عشق رسول, محبت, امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے. صوفیہ کا پیغام یونیورسل پیغام ہے. یہ صرف 2 سرحدوں کے درمیان جوڑنے کا باعث نہیں بن سکتا, بلکہ پوری دنیا کو یہ اس کے اندر وہ وسعت ہے کہ پوری دنیا کو یہ اپنے اندر سمو سکتا ہے. محفل سماع میں بھارت سے آئے سجادہ نشین اجمیر شریف, سجادہ نشین گڑھی شریف, خواجہ غلام قطب الدین فریدی, چشتیہ شریف سے شعیب مسعود, ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین قریجہ, خواجہ غلام فرید قریجہ, خواجہ علی معین قریجہ سمیت دیگر خواجگان اور زائرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. سجادہ نشین اجمیر شریف سید محمد بلال چشتی کا کہنا تھا کہ 2 سرحدوں کی نفرتوں کو صوفیاء کرام کے پیغام سے ختم کیا جا سکتا ہے. ہم دعا گواہ ہیں اس آستانے کی وابستگی سے, سجادان کی نسبت سے, یہاں کی عوام سے جو پیار ملا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو فارسی کا کلام ہوتا ہے, لیکن اس خطے میں سراقی خطاب ہوتا ہے. ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین قریجہ کا کہنا تھا کہ عرس پر لاکھوں زائرین کی رہائش و لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. خواجہ صاحب کے عرس پہ آنے والے تمام زائرین کے لیے اور یہاں پر جتنی ٹیمیں, والنٹیئرز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین جو کام کر رہے ہیں, ان کے لیے خواجہ فرید فاؤنڈیشن
हर साल लंगर का एहतमाम करती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा का कहना था कि सूफिया कराम की जिंदगी पर अमल से ही इस्लाम के फरोग में कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अफजल फरीदी, रूही न्यूज, कोट मिठन। डीडी खान के लाहौर ग्रामर स्कूल में धनक रंगों का मेला सज गया। स्पोर्ट्स गाला में ईगल्स, फॉल्कन और स्विफ्ट हाउसेस में कांटेदार मुकाबला हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के लाहौर ग्रामर स्कूल में सजा स्पोर्ट्स गाला, बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में शरीक बच्चे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान की धुनों पर अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ाते रहे। बच्चों का कहना था कि स्कूल के ईगल्स, फॉल्कन्स और स्विफ्ट हाउसेस में कामयाबी के लिए कांटेदार मुकाबले हुए। आज मजे का दिन है। We have 3 houses in our school, Swift, Falcon and Eagle. Everyone was playing excitedly and I think Eagle will win. I participated in potato race, tug of war and water filling. And I think today Falcon will win because I am in Falcon and it just won the tug of war. स्कूल प्रिंसिपल उस्मा हमीद का कहना था कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों की जिस्मानी सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। स्पोर्ट्स गाला का मकसद बच्चों में टीम वर्क पैदा करना है। This is our annual sports gala and we celebrate every year as with excitement. Yes, show your excitement. The students are with me. स्कूल प्रिंसिपल उस्मा हमीद का मजीद कहना था कि फरोग तालीम में स्कूल हमेशा से पहले नंबर पर है। मेहमान खुसूसी मारूफ सहाफी यासिर शेख ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अब्दुल कादर के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। फिल वक्त इतना